Welcome to Marwadi University, one of the India's fastest growing university. We have students from almost 55 countries. Marwadi offers more than 45 programs, more than 12,000 plus students and 120 PhD faculties, Guinness awarded library, dedicated 4 acres ground of sports. We have a 13-floor hostel facilities with the lift and AC, non-AC. More than 5,000 plus students are staying full-time residents with Marwadi University. More than 500 plus companies is a hub of placement. Start filling your application. See you at Marwadi University. जय हिंद। मैं नशरीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के युग में एजुकेशन सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रह गई है। आज के स्टूडेंट्स को ज़रूरत एक ऐसे शिक्षा की जो उनमें सोचने, समझने और नए आविष्कार करने की क्षमता जगाए। इस दृष्टिकोण के साथ खालसा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने एक कदम आगे बढ़ाया है, स्टेम लाइब्रेरी का उद्घाटन करके। स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। ये 4 शब्द मिलकर बनते हैं एक ऐसा पाठ जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते नहीं, उन्हें वर्ल्ड क्लास प्रॉब्लम सॉल्वर भी बनाते हैं। ये एक ऐसी लर्निंग स्पेस है जहाँ थ्योरी का रियल वर्ल्ड से मिलन होता है। ये लैब एक ओपन प्लेग्राउंड है जहाँ गलतियाँ करना मना नहीं बल्कि सीखने का एक हिस्सा है, जहाँ हर एक्सपेरिमेंट पर, हर प्रोजेक्ट, हर मॉडल एक नई आइडिया का बीज है। आज के डिजिटल AI एरा में जब दुनिया रोबोट्स, कोडिंग, ड्रोन और बायोटेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है, तब स्टेम एजुकेशन बच्चों के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य का गारंटी बन रहा है। इस लैब के माध्यम से स्टूडेंट्स को मिलेगी ऐसे एक्सप्लोर जो उन्हें दुनिया से कंप्लीट करने लायक बनाएंगे, बिना शहर बदले, बिना कोचिंग सेंटर्स के भरोसे। खालसा पब्लिक स्कूल ने जो कदम उठाया है वो एक मिसाल बनेगा अंडमान के दूसरे स्कूलों के लिए भी। एक नई सोच, नई टेक्नोलॉजी और नई सपनों से भी बदलाव आता है। तो चलिए हम भी बढ़ते हैं आज के स्टेम लैबोरेटरी के उद्घाटन में, ताकि हम भी देख सके कि बच्चे जो है इनसे क्या क्या सीख सकते हैं आगे अपने फ्यूचर्स के लिए। Every time, congratulations and thank you so much for inviting me here today. I saw something very new and I'm so happy with young kids and budding stars of Andaman Nicobar Island are coming up with new ideas, especially with AI. And I think this is the only school at present in Andaman Island as far as I know who have come up with this idea of STEM lab, where the students are doing such an innovative work with AI and robotics. This is a new generation thing which is coming up. I wish you all a very best, and I want to remember all your faces, and I want to see you back as young scientists doing something very good for, especially for the islands of Andaman Nicobar Island. So my best wishes, blessings, and also my all the best wishes to the principal and as well as the management of Khalsa Public School. And I think through Doordarshan and other media, this message should go to every schools of this island to come up with this new thing, because artificial intelligence is the future. We have got Meta now, ChatGPT, so many things coming up, but first time only with the sensor and the voice command, the robotics and the machines are working without using of our hands. So this also something very much new for me to also learn here. So I am also going back with something which I learned from all you kids. And say that first. So show the hand gesture and say for what it is. So ma'am, when we put a file, it goes forward, and when we put the two finger gesture, it goes backwards, and when you put thumb sideways, it goes left.
you need to remove your hand. Ma'am, but it gets stuck and can fall. So and when you put like an L gesture, it goes right. You want to put it down and show them? Because You can put it down. small Okay, you area. get it recorded. Sure, ma'am, sure, ma'am. It's really very good. So how is going to help us in the society? So ma'am, as you know that ma'am, just as my friend has explained that it is the workers who are working on forklift or who are standing on their way has a high risk of the containers, bulky containers falling onto them. So by seeing this problem that we have created a robot which moves with hand gesture. So the operator can sit in a safe distance and can tell all the people that to move aside because the forklift can injure them. So they can watch and control the forklift by hand gesture from a safe distance. Very nice. Very Thank you. good. Good morning, everyone. Myself, Lisa Topo from Khalsa Public School. And this is my team, Swastik and Pratik. We have created voice-controlled pulley gripper crane, which helps to lift object, and it is controlled by voice. We have done with the help of coding and AI. Let me tell you why we have created this. In many construction sites, people face problems while lifting the objects. By seeing that problem, we have created this automated pulley gripper, which is controlled by voice control, which is much safer than the manual one because it doesn't has a risk of any hazard or hurting someone. Now let my teammate will operate this and show you all. Operate, Pratik. See, when he said open, the gripper opened. Now when he will say close, it will automatically get closed. See again. See, it has been closed. Now he'll say forward, and the machine will start to move forward. And it is very cost effective to make. It's a new innovation which helps people to stay safer, and and your machine does all the job. I want everyone to be cooperate with us and learn new things as us and make our future bright and tight, and we will cope with our government to get this implemented in our islands to save many lives. And it is very beneficial for the disabled ones who don't have hands or and they are handicapped. They can directly operate from the PC. They can say open, close, and this will work. And so this is very innovative idea. And I am thanking my both the sir, Arvind sir and Ando sir. They both have trained us to make this. Thank you so much, sir, and thank you. So good morning everyone. My name is Alia Hanif and these are my teammates. My name is Algu Anand. My name is Ashwini Kumar. So today we are presenting a smart vending machine. It is a combination of STEM, which means science, technology, engineering and mathematics. So it's a very interesting project that we all have to do. It is mainly used in schools, malls, airports and in etc. We have to pull an object. We have to take one object to here and it will got down, and the touch sensor detect it and give you the item. Like when you go in an airport, you have to pay and the item will get it. So it is a miniature model of that. We have used 3 types of sensors: ultrasonic sensor which detect the measures and distance, and we have also used infrared sensor which conclude infrared radiation and which give like ultrasonic sensor like bat sonar is used as an ultrasonic sensor which give the ultrasonic waves. The IR sensor, infrared radiation sensor, give the electronic magnetic radiation. And last, the touch sensor, which only have to be touched and it detect the item. So what? The touch sensor will detect the item, and we have used 2 types of motor also. First is the speed motor. Its RPM is 100 RPM round per minute, and we have used torque motor which RPM is 80 round per minute. So it's all about that. We use in Sri Vijayapuram also. There in some gas stations like vending machine is also kept in malls, schools and etc. That's all for this. Thank you.
Hello, my name is Afifa Sameer and this is my teammate Anshika Pandey. Today we are going to present our STEM project called the All-Terrain Board. The All-Terrain Board is a robot that moves across all types of terrains like muddy, snowy, sandy, rocky, etc. Our bot uses special kinds of wheels, tracks and sensors so it can adapt to the environment. These bots are built to face extreme weathers and unpredictable obstacles. Now the question arises, why is all-terrain board important? The all-terrain board is important because our soldiers usually go to terrains like mountains and forests with hidden landmines. Sending humans into those zones put their lives at risk. So our team came up with this solution because it can move across all types of terrains. It has camera that sends live data to us. It can even detect mines. In conclusion, this bot is not just a bot. It is a life-saving, risk-reducing solution to the real-world problems. Throughout this project, we learned that creativity and teamwork together can solve really serious problems. Thank you for your time. And good morning, myself Ishika, and these are my team members. Today we are presenting our project conveyor belt with a robotic arm. Nowadays our world is going up and up automatic, so that we had created this small model conveyor belt with a robotic arm, which can use in airports, like to carry the luggage from one point to another point easily and faster. And the another hand we are having robotic arm which can lift the luggage and put it down easily without any manual way. By using this robot, we can save our time and energy. Thank you. Good morning, my name is Rivinish. I study in class 9th and today my team have made a robot which moves not only by remote but moves by hand gestures. As you can see that when puts a hand gesture in front of the laptop, it moves. सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है अंडमान निकोबार आइलैंड्स के जो लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के साथ ये बात साझा करते हुए कि 3 साल पहले हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट स्टार्ट किया था। सो धीरे धीरे हमने उसको अभी 11th एंड 12th में एज अ कोर सब्जेक्ट बना दिया। सो मेरे साथ है हमारी स्कूल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट की एक्सपर्ट कनमनी मैम। सो मैं इस बच्ची का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये भी बहुत मेहनत करती है और बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट को इतने अच्छे से कराती है कि इस साल 2 बच्चों को तो 100% मार्क्स भी आया है CBSE में। तो हम दोनों आपस में बहुत डिस्कस करते थे इसके बारे में। शायद यूनिवर्स मेरी ये बात सुन रहा था। सो तब मेरी मुलाकात बॉम्बे के एंटो फर्नांडो से हुई थी, जब मैंने इसके बारे में इनके साथ डिस्कस किया कि मुझे डेटा साइंस और रोबोटिक्स लॉन्च करना है अपने स्कूल में। सो इनको भी हार्दिक प्रसन्नता है क्योंकि अंडमान में हम लोग देखते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में जो बच्चे 12th पास करके कॉलेजेस में जाना चाहते हैं उनको इतना ब्रॉड विजन नहीं होता है कि हमें इसके बारे आगे चल के और क्या करना है। तो बच्चे मोस्टली सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ के रह जाते हैं। तो ये जो हमारी सोच है, ये जो पहले ही हमारी 3 साल की मेहनत है, तो मैं फर्नांडो सर और कनमनी दोनों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरा ये जो सपना है बच्चों को आगे लेके जाने का टेक्नोलॉजी फील्ड में, वो आज पूरा हुआ है। तो ये जो लैब बनाई गई है, स्टेम लैब जिसको बोलते हैं, स्टेम का आप फुल फॉर्म समझ सकते हैं। स्टैंड्स फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियरिंग एंड M फॉर मैथमेटिक्स। तो ये जो स्टेम लैब है इसका बनाना इसलिए ये उचित है क्योंकि एक तो यहाँ पे बच्चे कंप्यूटर तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो जो बच्चे को अभी आपने देखा कि जो इक्विपमेंट्स वगैरह कुछ भी अंडमान में तो मिलता नहीं है, उसके लिए भी बहुत अथक प्रयास किया गया है। और फर्नांडो सर ने इसको मेरे लिए हर एक चीज़ को मेनलैंड से मंगा के मेरी आज लैब को जो है एक सपना पूरा किया है। तो ये जो लैब है ये स्कूल बंद होने के बाद भी खुली रहेगी। जो इवन कॉलेजेस में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर कोई वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट वगैरह करना चाहते हैं, हमने उसको भी शुरू करने का सोच लिया है। तो बच्चे हमें अप्रोच कर सकते हैं, मेरे स्कूल में आके भी फॉर्म ले सकते हैं। और हमने आगे सिख बच्चों को आगे और लेके जाने के लिए जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जो इंटीरियर आइलैंड्स में बच्चे रहते हैं, दूसरे आइलैंड्स में, चाहे कैम्बल बे के बच्चे हैं, चाहे माया बंदर के बच्चे हैं, अगर वो भी इस सब्जेक्ट को आगे लेके पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास हमारी फैकल्टी है, अरविंद सर हैं,
एंड विनीत सर तो अभी हमारे साथ ज्वाइन करे आज की इस इनॉग्रेशन के लिए। सो मैं तहे दिल से अरविंद को भी मुबारकबाद देती हूँ कि एज ए फैकल्टी वो यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा ही होने वाला है। आगे चल के बच्चे डिफेंस में चाहे जाए तो डिफेंस में इसकी बहुत मदद होगी, और अगर बच्चे इसरो या नासा या BARC के साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो हमने अगर सपना देखा है तो बच्चों के लिए लेके देखा है। तो हम बच्चों को यह एक सपना दिखाना चाहते हैं कि आप यहाँ से आगे निकल के कहाँ तक आप और अच्छा मुकम्मल उड़ान भर सकते हैं। तो यही मेरा प्रयास था, और मैं सभी मीडिया कर्मियों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये जो अवेयरनेस करनी थी हमने आपने इसमें भी हमारा इतना भरपूर सहयोग दिया। और 24/7 न्यूज़ चैनल का तो मैं वैसे ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमेशा हमारा इतना साथ देते हैं। तो ये हमारा जो मैसेज है ये खाली अंडमान द्वीपवासियों के लिए नहीं है, ये पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड्स की यूनियन टेरिटरी के लिए है कि कहीं से भी अगर बच्चे आके इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं डेटा साइंस या रोबोटिक्स के बारे में, वो आके हमारे स्कूल में इवनिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। Good morning, everyone. My name is Anto Fernando, and I come from Mumbai. So basically, I visited this island 5 years back. तो जब पहली बार ये आइलैंड में जब आया था तो मुझे बहुत सारा चीज़ यहाँ पे नया जो है दिखाई दिया। एग्जाम्पल, मुझे लगा अंडमान सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट है, और जब यहाँ आकर पता चला कि यहाँ मोर देन 20-25 स्कूल्स है जहाँ की बच्चे सब CBSE पैटर्न जो है फॉलो करते हैं। तो माई विजन वॉज वाई डोंट आई इंट्रोड्यूस रोबोटिक्स एंड टेक्नोलॉजी ओवर हियर। द रीज़न बीइंग, उसका जो मकसद ये है कि अंडमान इज़ अ डिफेंस लैंड, और हमारा ड्रीम ये है कि रोबोटिक्स और AI जो है अगर हमने डिफेंस में इम्प्लीमेंट कर दिया तो वहाँ हमें बहुत सारा नया चीज़ होगा। आई एम रियली सॉरी इफ़ माई हिंदी इज़ बैड, बिकॉज हम जो है मुंबई से है तो वहाँ का हिंदी और हमारा हिंदी में थोड़ा डिफरेंस है। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस इफ देयर इज़ एनीथिंग। सो जब भी हम यहाँ पे आए, टू बी वेरी फ्रैंक, जब भी हम मैम को मिले थे, मैम इतना एक्साइट हो गए थे और मैम हमें वो अपॉर्चुनिटी दी कि फर्नांडो मुझे ये चीज़ मेरा बच्चे तक लेके जाना है। एंड ये जो अपॉर्चुनिटी जो है हमें अभी इम्प्लीमेंट करने के लिए मिला है। सो आई एम रियली थैंकफुल टू सरबजीत मैम, जिन्होंने एक एक्स्ट्रा माइल जाकर मैनेजमेंट को कन्विंस कर ये स्टेम लैब जो है इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पर। और आप देख सकते हो कि ये सब मिनिएचर्स मॉडल है। अगर ये अंडमान अगर नेक्स्ट लेवल में जा रहा है तो उसका एक कारण जो है वो है सरबजीत मैम। सो आई वुड लाइक टू थैंक सरबजीत मैम फॉर एवरीथिंग व्हाट शी हैज़ डन फॉर मी एंड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और जो है हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चे जो है एक नेक्स्ट जनरेशन बनाए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई एम विनीत। मैं एक्चुअली पहले से टेक्निकल हेड में हूँ ये सब चीज़ों में, रोबोटिक्स में, और यहाँ अंडमान में हम लोग ने पहली बार चालू किया ये सब। तो आपको पता लगा रहेगा कि हम लोगों ने लैब सेटअप्स किया है, कैसे बच्चों ने हर एक प्रोजेक्ट अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है, इनोवेशन करके बताया है। बट अभी जो मेरा मोटिव है यहाँ सिर्फ रोबोटिक्स तक नहीं है, यहाँ मैं रोबोटिक्स के साथ ड्रोन्स भी चालू करने वाला हूँ। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो मैं किसी मिनिएचर मॉडल से लेके एक बड़े मॉडल से मैं सब कुछ बच्चों को सिखाने वाला हूँ। फिर आगे हर एक साल हम लोग का ये टारगेट है कि हर एक साल बच्चा नई नई चीज़ें सीखेगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ रोबोटिक्स ही सीख रहा है। अगर ये साल रोबोटिक्स सीख रहा है तो अगले साल ड्रोन सीखेगा, उसके अगले साल इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिस पे 3D प्रिंटर सीखेगा। जैसे कि ड्रोन्स है, ड्रोन्स उड़ाना, उसको हैंडल करना, ये सब बच्चे सीखेंगे। बट ड्रोन बनता कैसे है, उसके मॉडल्स कैसे बनते हैं, तो ये 3D प्रिंटर के थ्रू बनेंगे। तो बच्चों को हम लोग पूरे कोर में लेके जाएंगे और सब सिखाएंगे। तो यही हम लोग का मोटिव है। आगे जाके इसके अलावा कंपनीज में ह्यूमनॉइड्स भी यूज़ होते हैं, जैसे कि एक्चुअल रोबोट। तो ये रोबोट कैसे बनता है, फॉर एग्जांपल एक सिंगल आर्म से हम लोग चालू करेंगे कि उसके फिंगर्स कैसे मूव होते हैं, उसका प्रोग्रामिंग कैसे रहता है। तो हर एक पार्ट से हम लोग बच्चों को पूरा ह्यूमनॉइड सिखाना चालू करेंगे। तो जैसे जैसे साल एडवांस होते जाएगा, बच्चे सीखते जाएंगे, हम लोग उसको और एक एडवांस लेवल पर चले जाएंगे। और खालसा स्कूल वो बोलते ना, एक टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग बहुत ग्रो करेंगे अंडमान में। थैंक यू, दैट्स इट। मेरा नाम कनमनी है। हम यहाँ खालसा पब्लिक स्कूल में PGT AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाती हूँ।
और मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ये बोलना चाहती हूँ कि अभी तक बच्चे इतने अवेयर नहीं हुए हैं, बच्चे डर रहे हैं कि वो सब्जेक्ट बहुत हार्ड होगा और उसके बारे में अभी तक अवेयरनेस नहीं आई है बच्चे के अंदर। मगर अभी धीरे धीरे बच्चे, जब हम लोग यहाँ इंट्रोड्यूस किए थे 2022-23 सेशन में, फर्स्ट हम लोग के बच्चे थे। अभी हम लोग बच्चे फर्स्ट एग्ज़ाम लिखे, 12th बोर्ड अभी पास आउट हुए, जिसमें 2 बच्चे ने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। और बच्चों को धीरे धीरे अभी समझ में आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और सीखना क्यों चाहते हैं, और बच्चे अभी इंटरेस्ट भी दिखाना चाहते हैं। और उनका प्रोजेक्ट्स, अभी इनका फाइनल में प्रोजेक्ट सबमिट करना होता, जिसमें 2 बच्चे ने प्रोजेक्ट सबमिट किया और उन्होंने एग्जीबिशन में भी उसको एग्जिबिट किया था। एंड्रॉल ऑब्स्टिकल कार और ड्रोन सिस्टम बच्चे मॉडल बनाए थे, जो एग्जीबिशन के लिए सिलेक्ट भी हुआ था। बच्चे को उसमें प्राइजेस भी मिला है। और हम लोग एक बच्ची है शिवरंजनी, जो नेशनल लेवल कंपटीशन में गई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टॉक पे। और इसी तरह बच्चे, हम चाहते हैं कि बच्चे और भी आगे आएँ, इससे और भी आगे बढ़ें। और हमारे स्कूल खालसा पब्लिक स्कूल आपको 24/7 आपको हेल्प करने के लिए चाहते हैं। बच्चे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस। अभी स्टेम लैब भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, तो बच्चे इसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे उनके फ्यूचर के लिए ये बहुत यूज़फुल होगा। Thank you. Hi everyone, my name is M. Alviraj. I am a STEM instructor in Khalsa Public School, and I am born and brought up over Andaman only. So I am basically from the islands, and I have always been fascinated about AI and robotics, that how they work and how they perform. So that got my interest, and I was attracted towards it. So I have completed my graduation from post graduation from data science, data analytics, and advanced ML track. And further to that, I have worked with the Dodel Technology with Anto sir, who is the CEO of it. Post 3 years, we have conducted a private class where I was an assistant professor over there as a trainer. And then we have also visited many schools, but still the awareness of the importance of the data science and robotics is still missing among all the islanders over here. So this has fascinated me in such a way that I am in a position to train all the kids. So the models you have seen over here is all trained by me, and as a STEM teacher, I feel very proud that students of our island, especially from Khalsa School, had gotten great interest on this, and they are doing such an advancement that it is growing rapidly. And if I feel that if I can do this, every student in Andaman and Nicobar Islands could do it. And no mention where, like we got an other scientist or other AI instructor from Car Nicobar to Little Andamans to Port Blair. So we never know who is going to grow up. So as the first STEM lab, I really very thank Principal Ma'am of Khalsa Public School. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. जब हम शिक्षा का विकास कहते हैं तो इसका अर्थ सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना नहीं होता। असली विकास तब होता है जब एक बच्चा सोचने लगता है, सवाल करने लगता है और नए हल खोजने लगता है। स्टेम लैबोरेटरी इस विकास का मूल आधार है। इसने एक फाउंडेशन रख दिया है जहां से कल के इंजीनियर, साइंटिस्ट, एआई डेवलपर्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स उभरेंगे। जब किसी बच्चे को एक स्क्रू ड्राइवर पकड़ाना, एक रोबोट बनाना, एक सेंसर जोड़ना या एक ऐप कोड करने का मौका मिलता है तो वो सिर्फ एक स्किल नहीं सीख रहा होता, वो अपने अंदर के नए दृष्टिकोण डेवलप कर रहा होता है। ये एक भविष्य निर्माण केंद्र है जहां अंडमान के स्टूडेंट्स अपने सपनों को डिज़ाइन, रिसर्च और इम्प्लीमेंटेशन करना सीखेंगे। आज खालसा पब्लिक स्कूल ने एक दरवाज़ा खोला है, एक नई भारत के कल्पना का दरवाज़ा, जहां स्टूडेंट सिर्फ जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर, प्रॉब्लम सॉल्वर और नेशन बिल्डर भी बन सकते हैं। और इसके लिए हम स्टेम को और खालसा पब्लिक स्कूल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि यहाँ के बच्चे जो है फ्यूचर के डेवलपर्स बने और हमारा अंडमान एंड निकोबार का नाम हर जगह रोशन करें। इसी के साथ न्यूज़ अंडमान 24/7 की आज की स्टडी से मैं विदा लेती हूँ। कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नसरीन, न्यूज़ अंडमान 24/7 से। जय हिंद।